بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ آج آسان نحو کا 7واں سبق 7th لیسن پڑھیں گے، جس میں معرب اور مبنی کو سمجھایا جائے گا. آج کے سبق میں معرب اور مبنی کو سمجھایا جائے گا. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، معرب اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کے آخر میں اعراب بدلتے رہتا ہے. اعراب یعنی زبر زیر پیش بدلتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرب. اور ایک قسم ہے مبنی. مبنی ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں، اس اسم کے آخر میں اعراب بدلتے نہیں، ایک ہی حالت پہ رہتے، اس کو کہتے ہیں مبنی. ٹھیک ہے، چلیے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اور اچھی طرح سمجھیں گے. میں اسے زوم آؤٹ کر رہا ہوں. دیکھیے، شاید آپ کو اسکرین صاف صاف نظر آ رہی ہے. 7واں سبق. سب سے پہلے ایک بات بتا دوں، اس لیسن کے آخر میں سوال جواب بھی ہے. اسی لیسن کے متعلق، اسی سبق کے متعلق سوال جواب بھی ہے. آپ خود ان سوالات کا جوابات یا تو اپنے نوٹ بک میں لکھیں یا انڈیکس میں لکھیں، کامنٹ میں لکھیں. آخری حرف کے تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب، اب معرب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف: وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو. نمبر 2، مبنی، وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو. جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے. اب دیکھیں، آپ پہلے یہ سمجھا دو معرب اور مبنی کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتے رہتا ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پہ رہتا ہو. دیکھیے، جاء ھذا، جاء فعل ہے اور ھذا فاعل ہے، اور فاعل پر کون سا اعراب آنا چاہیے؟ پیش آنا چاہیے، لیکن یہاں پر پیش نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب نہیں بدلتا. رأیت ھذا، اس میں ھذا مفعول ہے اور مفعول پر نصب آنا چاہیے، زبر آنا چاہیے، لیکن یہاں پر نہیں ہے. مررت بھذا، یہاں پہ ھذا سے پہلے حرف جر بی ہے، بی کی وجہ سے، بی حرف جر کی وجہ سے آخر میں جر یعنی زیر آنا چاہیے، لیکن نہیں ہے. یہاں پر پیش نہیں ہے، یہاں پر زبر نہیں ہے، اور یہاں پر زیر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ھذا مبنی ہے. ھذا مبنی ہے اور مبنی پر اعراب نہیں بدلتا، ایک ہی حالت میں رہتا. اس کی جو اصلی حالت ہے زال الف زبر زا، یہی اس کی اصلی حالت ہے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہے گا. ٹھیک. ہاں، معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں عامل کے بدلنے کی صورت میں اعراب بدلتا رہتا ہو. جیسے میں آپ کو آگے سمجھا دوں گا، اس کے بعد پھر آئیں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیے، جاء زیدن ایک مثال، رأیت زیدن دوسری مثال، مررت بزیدن تیسری مثال. یہاں پہ دیکھیے، جاء زیدن میں زیدن فاعل بن رہا، رأیت زیدن میں زیدن مفعول بن رہا، مررت بزیدن میں زیدن مجرور بن رہا. یہاں پہ زیدن فاعل بن رہا اور فاعل پر پیش آتا، یہاں پر پیش آ گیا. یہاں پر زید مفعول بن رہا اور مفعول پر زبر آتا، یہاں پہ زبر آ گیا. بزیدن یہ مجرور بن رہا باہر فجر کی وجہ سے، اور باہر فجر کی وجہ سے زیر آتا، یہاں پر زیر آ گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زیدن معرب ہے، زیدن معرب ہے.
इसमें आमिल के बदलने की सूरत में आमिल यहाँ पे जा है और यहाँ पे रअयतु है और यहाँ पे बी है, ये आमिल है, अमल करने वाला, उसकी वजह से यहाँ पे एराब बदल रहा है। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। देखिए, मुअरब वो कलिमा है जिसका आखिरी हर्फ आमिल के बदलने की सूरत में बदलता रहता हो। मबनी वो कलिमा है जो हमेशा एक हाल पर रहता हो, आमिल के बदलने से उसमें तब्दीली ना आती हो। जैसे जा हाजा, रअयतु हाजा, मररतु बिहाजा, इन तीन मिसालों में हाजा मबनी है। होना तो ये चाहिए, ये फाइल बन रहा है, पेश होना चाहिए, लेकिन नहीं है। दिखाई देना चाहिए पेश, और यहाँ पर जबर आना चाहिए लेकिन नहीं आया, और यहाँ पे जेर आना चाहिए लेकिन नहीं आया। क्यों? इन मिसालों में हाजा मबनी है। ये शेर याद करें, मुअरब की फारसी में है ये, मुअरब आ बाशत के गर्दद बार बार, मबनी आ बाशत के मानंद बरखराब। जिसका तर्जुमा है, मुअरब वो कलाम है जो बार बार घूमे, यानी बदले, कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश। मबनी वो कलिमा है जो एक हालत पर बरकरार रहे, फाइल हो तो भी एक ही हालत, मफूल हो तब भी एक ही हालत, मजरूर हो तब भी उसकी असली हालत। अच्छा, आगे देखिए, आमिल वो है जिसकी वजह से मोरब के आखिर में तब्दीली होती हो। आमिल किसको कहते हैं? आमिल वो चीज है जिसकी वजह से मोरब के आखिर में तब्दीली होती हो। अभी मैं इसको मिसाल के जरिए समझाऊंगा, आप अभी इसको याद रखें। उसके बाद है एराब, वो तब्दीली है जो मोरब के आखिरी हर्फ में होती है। महल एराब, मोरब का आखिरी हर्फ। तीन चीजें याद रखिए, आमिल, एराब और एक महल एराब। चलिए अब मिसालों के जरिए से तीनों चीज समझेंगे। जा हाजा, रअयतु हाजा दूसरी मिसाल, मररतु बिहाजा तीसरी मिसाल। तीन मिसाल है, इन तीनों में जैद मुअरब है। जैद क्या है? मुअरब है। अच्छा, जा, यहां पे देखिए, इस मिसाल में जा, और दूसरी मिसाल रअयतु जैदन में रअयतु, और मररतु बिजैदिन में बा, ये हर्फ जर आमिल हैं, अमल करने वाले हैं। ये जा क्या अमल कर रहा? पेश देने का अमल कर रहा। रअयतु क्या अमल कर रहा? जबर देने का अमल कर रहा। और बा क्या अमल कर रहा? जेर देने का अमल कर रहा। तो ये आमिल हो गए, जा, रअयतु और बी। ये तीन चीजें इन तीनों मिसालों में आमिल है, इसकी वजह से पेश आ रहा, जबर आ रहा और जेर आ रहा। शायद बात समझ में आ गई। आमिल किसको कहते हैं? वो है जिसकी वजह से मोरब के आखिर में तब्दीली होती, यानी यहाँ पे पेश किसकी वजह से? जा की वजह से। यहां पर जबर किस लिए? रअयतु की वजह से। आखिर में जैदिन में जेर, बाहर फिजर की वजह से। तो ये आमिल हो गए, ठीक है। और जैदुन पर रफा, नसब और जर, यहाँ पे ये रफा यानी पेश, नसब यानी जबर, और जर यानी जेर, ये तीन क्या है? एराब है। इसको क्या कहते हैं? एराब, जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। और जैदुन की दाल महल एराब है। महल एराब माने एराब की जगह। जबर जेर पेश कहां पे तब्दील हो रहे हैं? ये जैद के आखिर का जो हर्फ है, जो लेटर है दाल, उस पे बदल रहे हैं। कभी पेश, कभी जबर, कभी जेर। तो ये जो दाल है, इसको कहेंगे महल्ले एराब, एराब की जगह। कभी एराब पेश आ रहा, कभी एराब जबर आ रहा, कभी एराब जेर आ रहा। तो ये होगा महल्ले एराब। शायद आपको तीन चीज समझ में आ चुकी है, आमिल, एराब और महल्ले एराब। फिर एक बात समझिए, आमिल कहते हैं जिसकी वजह से जबर जेर पेश आ रहा है, एराब कहते हैं जबर जेर पेश को, और महल्ले एराब कहते हैं जहां पर जबर जेर पेश आ रहे हैं उसको महल्ले एराब कहते हैं। कायदा,
इसमें मुअरब के 3 एराब है। इसमें मुअरब के 3 एराब है। कौन कौन से हैं? रफा, नसब और जर। रफा, नसब और जर, इसको समझने के लिए समझे। रफा ने पेश, नसब माने जबर, जर माने जेर। ठीक है, शायद अच्छी तरह आपको समझ में आ चुका है। और जिस इस्म पर रफा हो उसको मरफू कहते हैं, और जिस पर नसब हो उसको मंसूब कहते हैं, और जिस पर जजम हो उसको जर हो, सॉरी, जिस पर जर हो उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जैदुल, इस पर पेश आया तो ये मरफू। खाली पेश को रफा कहेंगे, और जिस इस्म पर रफा आए उसको मरफू कहेंगे। जैदन, खाली दो जबर को नसब कहेंगे, और जिस इस्म पर दो जबर आया उसको मंसूब कहेंगे। जैदिन, खाली दो जेर को जर कहेंगे, और जिस इस्म पर जर आए उसे मजरूर कहेंगे। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। आई या नहीं, अच्छी तरह समझ में आई या नहीं, कमेंट में जरूर लिखें। तो ये है, देखिए आपके सवाल। क्या है सवाल? नंबर 1, मुअरब और मबनी की मिसालों के साथ मुकम्मल वजाहत करें, और अपने लैंग्वेज में करें। आप इसमें जो लिखा हुआ है उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लहज पर करें, अपने लैंग्वेज में करें। नंबर 2, आमिल, एराब और महल्ले एराब की तारीफ लिखिए। आमिल किसको कहते हैं, एराब किसको कहते हैं, और महल्ले एराब किसको कहते हैं, इसकी तारीफ लिखिए। तो शायद आपको ये लेसन, ये सबक अच्छी तरह समझ में आ चुका है। आपसे गुजारिश है, खुद भी पढ़ें और दूसरों तक शेयर करें। और सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।